ऑपरेशन 360 का पहला चरण है कश्मीर वैली से आतंक का समूल नाश। देश के बहादुर सैनिकों ने इसके लिए प्रण ले लिया है और जान की बाजी लगाकर आतंकियों पर कर रहे हैं निर्णायक प्रहार। सुरक्षा बलों ने कश्मीर से आतंक के सफाई के लिए आतंकियों की मांओं को आगाह किया है कि अगर वे अपने बेटों को बंदूक डालने के लिए बोले वरना सेना उन्हें जहन्नुम में पहुंचा देगी। रिपोर्ट देखिए। इंडियन आर्मी की दो टूक, आतंकियों की अम्मी को किया आगाह, जो घाटी में घुसपैठ करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अगर जान प्यारी है तो हथियार डाल दो, जो सामने आएगा वो जहन्नुम जाएगा। आतंकिस्तान के बच्चे जैश को दिखाया आईना। पाकिस्तान कब तक मनाएगा जैश की खैर? कितने गाजी आए और चले गए। आतंक पर आखिरी प्रहार की तैयारी, भारी पड़ेगी दहशतगर्दों को अय्यारी। पाकिस्तान के हुक्मरान कान खोलकर सुन लें, आतंक के आका ध्यान से सुने। आतंक की अम्मी आईएसआई धड़कनों को रोककर सुने। यह चेतावनी है भारतीय सेना की, ये चेतावनी है सीआरपीएफ की, ये चेतावनी है जम्मू कश्मीर पुलिस की। पुलवामा एनकाउंटर में जैश के कमांडरों को ढेर करने के बाद जीओसी चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन, आईजी सीआरपीएफ जुल्फिकार हसन और श्रीनगर के आईजी एसपी पाणी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने ओपन चैलेंज किया दहशतगर्दों और उनके पालने वालों को। पुलवामा आतंकी हमले के स्क्रिप्ट राइटर को उसकी मांद में घुसकर मौत के घाट उतारने के बाद हमारे बहादुर जवानों ने कश्मीर में पल रहे आतंकी सपोलों को चेतावनी दी। General Kamran was Chief Operations Commander of Jaish-e-Mohammed in Kashmir. He was a Pakistani and he was being handled by the Jaish-e-Mohammed of Pakistan in conjunction with ISI and Pakistan Army from across the border. So he was the top commander of the Jaish-e-Mohammed which carried out the 14th February convoy attack. So we have eliminated the top commander of the Jaish-e-Mohammed which carried out the attack. आर्मी ने कहा कि आतंक के रास्ते पर निकले युवाओं को उनकी माएं समझाएं, अगर कोई हथियार उठाएगा तो उसे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। Mother has a great role to play. Through you I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated. सीमा पार आतंकिस्तान को भी हमारे बहादुर जवानों ने चेतावनी दी। सेना ने जैश के कमांडर कामरान उर्फ गाजी की मौत पर कहा कि ऐसे कितने गाजी आए और चले गए। So-called Ghazi, you know it better than me in Kashmir. कितने गाजी आए, कितने चले गए. So there's nothing new in it. All these aliases keep happening, and we'll handle them. There's no problem about it. Let any Ghazi come. Now talking about in situation in Afghanistan and its impact on Kashmir, I think a lot has been written on it. A lot has been said about it. Coming down to the Kashmir Valley, we are very clear. Anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive in whichever way. So our focus is very clear on counter-terrorism operations. देश सेवा के लिए जवानों के जज्बे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाजी के एनकाउंटर में ऑपरेशन को फ्रंट पर लीड करने वाले हमारे जवान छुट्टी पर थे, लेकिन वो देश सेवा के लिए ड्यूटी पर तैनात हुए। Brigadier Harbir Singh, who is also injured, he was on leave at home
When he realized that in the midnight the operation has started, he cut short his leave voluntarily, he rejoined and he came back to Kashmir and went straight to the operational site. And he was leading his men from the front. So including DIG Amit Kumar, again he was leading his men from the front, and you would see the number of casualties of officers and the senior NCOs. It shows one thing, that our commanders were leading the operation from the front and we were trying to achieve nil civil casualties. जम्मू कश्मीर के आईजी एसपी पाणी ने माइक संभाला और घुसपैठियों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जो घुसपैठ करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। पूरी तरह से फोकस है। एंड ऑल्सो यू हैव टू अप्रिशिएट 2018 देयर वाज नॉट अ सिंगल अटैक, सुसाइडल अटैक और दैट नेचर ऑफ अटैक which Jaish could carry on. So we are working on it and we are trying our best. There are credible leads also, as it was said, and we are after them. So सीआरपीएफ के आईजी जुल्फिकार हसन ने शहीदों के परिवारों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि शहीद हुए जवानों के परिवार से कहना चाहूंगा, आप अपने आप को अकेले न समझें, आपके लिए हर वक्त हम खड़े हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने वाले कश्मीरी बच्चों के लिए भी हम हेल्पलाइन चला रहे हैं ताकि उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। I would like to assure everyone and above all the family members of the martyred brave men that whatever it takes, whatever it costs, we as the Corps Commanders already said, we as a team would ensure that all the people involved in these attacks are booked as per law. We stand by our families, by our martyrs, and I would like to assure everyone of our resolve to take this to its logical end. सुरक्षा बलों के ऐलान से साफ है कि सरकार से मिली खुली छूट के बाद अब देश के बहादुर जवान आतंक पर अंतिम प्रहार करने का मन बना चुके हैं। जैश कमांडरों का खात्मा तो बस शुरुआत है। असली निशाना है जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर, जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद और लश्कर का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन। भारत आतंक के खतरे को जड़ से खत्म कर कश्मीर में अमन चैन कायम करना चाहता है और इसके लिए शुरू हो चुका है ऑपरेशन 360। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।